اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو جنہیں شوگر ہے اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ شوگر کا ایک تو یہ ہے کہ آپ باقاعدہ جو آپ کا علاج چل رہا ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ علاج عرض کرتا ہوں، وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب شوگر کا یہ ہے کہ جسمانی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، اس حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ جسمانی جو کمزوری ہو جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ ہے کہ شوگر کو انشاءاللہ عز و جل جیسے بڑھنے نہیں دے گی، ایک مینٹن اس کو رکھے گی، وہ یہ ہے چاسکو کے نام سے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، چاسکو، یہ آپ لے لیں 50 گرام۔ اور نمبر 2، جامن کے جو گٹھلی ہوتی ہے اس میں تو اسے تخم جامن کہا جاتا ہے، یہ آپ لے لیں تقریباً 50 گرام، اس کے ساتھ اس کا ہم وزن ہی۔ اور ایک اور بیج ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے تخم سرس، یہ آپ لے لیں 50 گرام۔ اور اس کے ساتھ آپ چوتھی چیز جو شامل کرنی ہے اس کا نام ہے گوڑ مار بوٹی، گوڑ مار بوٹی، اس کو بھی 50 گرام لے لیں۔ ان چاروں چیزوں کو پیس کر صبح اور شام ایک چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے تقریباً آپ 6 گرام کہہ لیں، صبح اور شام اس کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل شوگر کے اعتبار سے بہت اچھا اسے پائیں گے۔ اللہ کریم صحت و شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی طرح سے فرمائے کہ سیدھی ٹانگ میں بہت درد ہے اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے جیسے کہا کہ نس دبی ہوئی ہے، اللہ کریم آسانیاں فرمائے، یا غنیو یا سلامو یا غنیو یا سلامو پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی۔ باقی رہا علاج کے اعتبار سے تو جب نس وغیرہ دبی ہو یا بعض اوقات مہروں میں گیپ آ جاتا ہے، مہرے ہل جاتے ہیں، مہرے گھس جاتے ہیں یا کوئی نس دب جاتی ہے تو اس کا باقاعدہ پراپر علاج ہوتا ہے، 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے جیسی مریض کی پوزیشن ہوتی ہے اس کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہی عرض ہے کہ چلتے پھرتے لوگوں سے اس کا ایک تو جیسے عام طور سے لوگ پوچھ لیتے ہیں وہ علاج نہ پوچھیں، اور نہ ہی اسی طرح سے کوئی چینل پر آپ کو کوئی بتاتا ہے تو نہ اس طریقے سے اس کے علاج کی طرف جائیں کہ یہ اس طرح کا علاج نہیں ہے کہ آپ اس میں خود پڑھیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی پراپر بیماری ہے، یعنی ایک ڈیزیز ہے، تو آپ کو اس ڈیزیز کا پراپر علاج کروانا چاہیے، ورنہ اس سے آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بتانا مناسب نہیں ہے، آپ باقاعدہ کسی اپنے قریبی کسی اچھے طبیب سے باقاعدہ علاج کروائیں۔ باقی رہا خارش کا معاملہ، تو خارش کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گرم چیزوں کا استعمال یا بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانا یا قبض وغیرہ کا رہنا، تو اس کے لیے آپ یہ جو میں علاج عرض کر رہا ہوں آپ یہ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ عناب کے 10 دانے عناب کے آپ لے لیں، اور تقریباً 10 گرام گلاب کے پھول لے لیں، 10 گرام جو ہے وہ سنا مکی لے لیں، یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، اور 10 دانے تقریباً گل منڈی کے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ ان چاروں چیزوں کو رات کو 1 گلاس گرم پانی کے اندر، چاہیں تو گرم ہو تو مناسب ہے ورنہ جو بھی ہو چلے گا، اس کو بھگو کر رکھ دیجئے اور صبح جو ہے اس کو چھان کر اس کا پانی پی لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ خارش وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ اگر آپ کوئی دوا بنا کر کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، حلیلہ سیاہ یہ چھوٹی ہڑ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ تقریباً 6 گرام لے لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ ایک اور جڑی بوٹی ہے اسے کہا جاتا ہے گل منڈی، یہ آپ اس کے ساتھ تقریباً 6 گرام شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ افسنتین کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، یہ تقریباً 6 گرام شامل کر لیں، تو یہ ایک خوراک اس کو جیسے پیس لیں اور صبح شام کی یہ خوراک بن جائے گی۔ تو اب چاہیں تو 100 گرام لے لیں اور ایک چھوٹی چمچ صبح شام استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ بعض اوقات کہا جاتا ہے جس کو خارش ہو نا یا جس کو دانے وغیرہ نکلتے ہوں وہ چرائتا، یہ نیپالی چرائتا، جی تو یہ بتائیے کہ اس کا کوئی مطلب کوئی ہے، واقعی فرق پڑتا ہے اس سے؟ نیپالی چرائتا لے سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ پینا جو ہے نا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ ناک وہ کہتے ہیں ناک بند کر کے پی لیں جیسے؟ اصل میں آج کل لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دوا بتائیں، جیسے ڈاکٹر کی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ صبح شام کھا لی۔ اب یہ جڑی بوٹیاں تو وہ عام طور سے لوگ استعمال
जो करने वाले हैं वही करते हैं, हाँ जी, तो वरना आसानी ही ढूंढी जाती है कि कोई ऐसी चीज़ बताई जाए कि जो फौरी जो है बंदा इसको इस्तेमाल कर ले। कोई टैबलेट है तो इसमें मार्केट में अच्छी कंपनियों के बने हुए खारिश के टैबलेट भी आती हैं। सही है। ज़ाहिर बात है हम वो नाम नहीं ले सकते, मगर ये है कि आप किसी अच्छी कंपनी जो मुस्तनद कंपनी है इनकी बनी बनाई टैबलेट ले लें तो वो भी फ़ायदा होता है। परहेज़ जो है वो मैंने अर्ज़ कर दिया, बड़ा गोश्त अपना तो चरायता पीने में कोई मलाइका है? मुझे पहले ये जवाब तो दें, भी चरायता अगर पिए, जिसको खारिश हो वो चरायता पी ले अगर, और नेपाली चरायता पिए। चरायता भी दो किस्म का होता है ना, एक नेपाली और एक कौन सा होता है, दूसरा एक और किस्म का भी होता है, चलें जो भी होता है वो। नेपाली चरायता जो है वो महंगा होता है, अच्छा, अच्छा खासा महंगा है। उसके जैसे यूँ कह लें कि वो अगर 400 रुपये किलो दूसरा है तो वो तकरीबन जो है ना वो इसका 3 गुना ज़्यादा होगा, मगर ये है कि वो होता बहुत फ़ायदेमंद है। सही। तो इसके लिए वो नेपाली चरायता ही अगर इस्तेमाल किया जाए, रात को भिगो के पी लें तो वो भी फ़ायदेमंद है। सुबह खारिश में वो भी फ़ायदा करेगा, बारिश में फ़ायदा करेगा, इसी तरह से खारिश में भी फ़ायदा करेगा, और मेरा ख्याल है रंग भी फेर करेगा। मैंने तो ये भी सुना। नहीं, वो बात तो तय है ना कि जब खारिश वगैरह दूर होती है तो ये मुसफ़ी खून दवाएं होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, यानी खून को साफ़ करती हैं। तो जब खून साफ़ होगा तो खारिश, जैसे खारिश दूर होगी तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह चेहरा भी शादाब हो जाएगा। चलें, ये भी बात होगी, ठीक है, अच्छा हो गया। और चरायता पीना ये काम है बहरहाल, वाकई सही कह रहे हैं खलील भाई। और देखें हर मुश्किल के बाद ही क्या है एक आसानी है। बात मैं आपको एक और अर्ज़ करूँ, हम ज़िंदगी के एक फेज़ में से गुजर रहे होते हैं और बड़ी रूटीन के साथ लाइफ हमारी चल रही होती है, थोड़ी सी उसमें डिस्टर्बेंस आती है तो बंदा हिला जाता है, वाकई हिल जाता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। बाज़ काम ऐसे होते हैं जो सीक्वेंस से हो रहे होते हैं, लेकिन जब सिनेरियो चेंज होता है और फिर वो काम सीक्वेंस से नहीं हो रहे होते तो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, वाकई हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर वो उस रूटीन में आ ही जाता है। तो बहरहाल ये अगर आप चरायता, जैसे खलील भाई ने मशवरा दिया है, ये अगर आप पीते हैं जिनको खारिश वगैरह है या जो मुसफ़ी खून साफ़ करने के हवाले से कोई ज़हन रखते हैं तो चरायता अगर पिए और उसको पानी में डिबो के रखना पड़ता है। आप मशवरा दे रहे हैं, चरायते का मैं नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो बुरा वाला कहे मुझे। अल्लाह, आप तजवीज़ करवा रहे हैं इनसे जी। बारह चरायता भी पी सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पनीर के नाम से एक जड़ी बूटी है जो कि मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने चंद एक मरतबा मैंने सुना है कि मदनी चैनल पर भी इरशाद फरमाया है, वो 15-20 दाने वो 1 गिलास पानी में डाल के रात को भिगो दें, वो पानी पी लिया जाए, वो भी बहुत खतरनाक होता है। यानी कि कड़वाहट, खतरनाक मतलब कड़वा होता है, यूं हम कहेंगे ना जी, ठीक है। ये भी होगा, पनीर पीना और चरायता पीना बराबर ही है। हमारे मिजाज के एतबार से ज़रा खतरनाक होता है, मगर ये कि जिसको दवा समझकर इस्तेमाल करेंगे तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, बड़े फ़ायदे हैं। वाह सुभान अल्लाह। जी, ये बात भी एक अच्छी, बाकी मैंने बता दी। वो नस वगैरह जो दबी हुई थी उस हवाले से तो मैंने अर्ज़ कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था पेशाब बार बार आता है जी, तो जिन लोगों को पेशाब बार बार आता हो तो उस हवाले से ये अगर इसके भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, मैं एक जनरली इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। अगर कोई ख़ास वजह नहीं है तो आप ये इलाज कर सकते हैं। तो राल सफ़ेद के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, नंबर 2 कुंदर और नंबर 3 गुलनार ये अनार के फूलों को कहते हैं, और तीसरी चीज़ है मग़ज़े जफ्त बलूत। तो ये चारों चीज़ों को आप हम वज़न लेकर इसको पीस लें, सुबह शाम 3-3 ग्राम इसको इस्तेमाल करें पानी से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो है ये बार बार पेशाब आने की जो कैफियत है ये दूर होगी। सही। और वेट कम करने का था, वेट गेन करना, वेट कम होगा उनको बढ़ाना होगा अपना वज़न। अच्छा, और वेट उनको बढ़ाना है तो इस हवाले से ये है कि अपने खाने पीने पे तवज्जो दें, बिलखुसूस खजूर का इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खासा शुगर नहीं है तो फिर खजूर का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ दूध के साथ अगर 5 खजूरें दूध में डाल के उसके अंदर बादाम वगैरह भी आप इस्तेमाल कर लें, ये भी 11 बादाम जी, ये भी फ़ायदेमंद है। 11 या 7 कितने खलील? जितने भी डाल लें, जितने भी डाल लें। और खाने पर तवज्जो दी जाए, वक्त पर सोएं और वक्त पर खाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा। चेहरे पर बाल थे, इस हवाले से तबीब जो मोहताद तबीब हैं वो यही मशवरा देते हैं कि इसको छेड़ा ना जाए। जो बाल वगैरह जैसे चेहरे पर होते हैं गैर ज़रूरी बाल, तो इनको छेड़ा ना जाए तो ये बेहतर है। आम तौर से इस्लामी बहनों को जैसे ये मामला होता है तो वो उस तरह के सवालात आते हैं, तो इसको छेड़ा ना जाए। आम तौर से लोग इसको जैसे काट लेते हैं तो फिर ये और बढ़ने लगते हैं। तो अब इसके एक प्रॉपर बाकायदा इसके जो असबाब हैं उस पर गौर करके किसी माहिर तबीब से जो है दवा ली जाए। ऐसा ना हो कि उसको छेड़ कर आप छोड़ दें और वो दवा यानी कि मुकम्मल ना हो सके
इलाज मुकम्मल ना हो सके। जिनके जिस्म पर इजाफी बाल होते हैं उनके मतलब चेहरे पर, जैसे चेहरे पर, कानों पर वो आ रहे होते हैं, हमने जो है वो मर्दों को भी देखा है, उनके कानों पर भी बाल मतलब अजीब से वो लग रहे होते हैं, तो इस तरह जो आ रहे होते हैं इस पर कुछ इरशाद तो अपने जैसे वो एक अलग मैटर है कि वो बाद लोगों के खून के मामला ऐसे होते हैं, सही खून की ख़राबी के बायस भी बाज़ औक़ात जिस्म में तब्दीलियाँ होती हैं, वो एक अलग मैटर है। ये है कि वो सवाल है कि शायद हो सकता है किसी इस्लामी बहन के का मामला हो कि इनके चेहरों पर जो बाल वगैरह आ जाते हैं, तो इसका प्रॉपर या तो किसी से प्रॉपर इलाज हो, वरना आम तौर से चलते फिरते नुस्खे टोटके करने से या उसको काटने कूटने से, ब्लेड के इस्तेमाल से बिलखुसूस फिर वो बढ़ सकते हैं। अल्लाह आफियत वाला मामला। बाकी आखिरी में वो 15 माह का बच्चा है तो उसको जो मामला है कब्ज़ वगैरह के हवाले से, तो इनके लिए ये अर्ज़ है कि आप इनको जो है आधी चम्मच बादाम का तेल और आधी चम्मच कस्टर्ड ऑयल, ये 2 चीज़ों को इनको पिलाते रहें, या फिर दूध में डाल के पिला दें या वैसे ही पिला दें, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो मुस्तकिल इस्तेमाल के साथ फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से अर्क गुलाब आप ले लीजिए, सुबह शाम इनको 1-1 चम्मच या दिन में 3 टाइम 1-1 चम्मच। से आतिशा गुलाब मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, वरना आम गुलाब भी 1-1 चम्मच इनको 3 टाइम देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मामला बेहतर हो सकता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसी तरह से चेहरे पर दाने वगैरह हैं उसके लिए ये जो ख़ारिश वगैरह का इलाज है ये भी फ़ायदेमंद है, वरना आप उनाब के नाम से एक जड़ी बूटी है ये ले लें, 10 दाने रात को पानी में भिगो कर रख दिया करें और सुबह जो है छान कर इसका पानी पी लें तो अल्लाह ताला ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, वक्त इख्तिताम पजीर है।